Hello learners, I welcome you all to my YouTube channel and it would mean a lot to me if you spare a second and subscribe to my channel and hit the bell icon. This is Anshi Agrawal and in today's video I am going to teach you the English Behave poem The Road Not Taken, which was composed by Robert Frost. So let's start with the video. Before starting the poem, I want to give some introduction about the poem. So here the title of the poem, The Road Not Taken, which simply describes that the road which is not taken by us. It means that in life we have to make choices. हम लोग को लाइफ में कुछ choices करनी होती है and in those two choices we have to choose one of them. और उन choices में हम लोग को कोई एक ही चीज़ हम लोग select कर सकते हैं. तो in similar way, there are two roads in our life and we have to choose one and the way we had chosen और जो हम लोग चूज़ कर चुके होते हैं the second road we have to be left over और दूसरी हम लोग को छोड़नी ही पड़ती है. So that's why with a similar title the poem has been about our life which symbolizes our life. So let's start with the poem. Two roads diverge in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveller. Long I stood and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth. So here in the first line of the poem, the poet Robert Frost describes that there were two roads diverged in the yellow wood. Here means there were two roads which were divergent in the yellow woods. Once upon a time then the poet was travelling. एक बार की बात है जब पोएट ट्रैवल कर रहा था और उसके सामने दो रोड्स आई, उसके चॉइसेस आई उसके सामने, जो दोनों रोड डाइवर्ज होकर येलो वुड में जा रही थी. हेयर द येलो वुड सिम्बलाइजेज द ऑटम सीजन. द ऑटम सीजन द कलरलेस ऑफ द लीव्स आर बिकमिंग येलो. इट मीन्स कि जो येलो वुड है वो ये सिम्बलाइज करती है कि जो ऑटम सीज़न आ चुका है, ऑटम का सीज़न था उस टाइम एंड जो लीव्स होती हैं ऑटम सीजन में वो पूरी येलो हो जाती हैं. सो सिमिलर वे दैट रोड इज़ ऑल्सो हैविंग अ येलो लीव्स. उस रोड में पूरे में येलो लीव्स थी उन बोथ द रोड्स एंड पोएट हैड टू चूज़ वन ऑफ देम. देन एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. देन पोएट इज़ फीलिंग सॉरी दैट ही कुड नॉट ट्रैवल बस बिकॉज एज अ ट्रैवलर, पोएट एक ट्रैवलर है. सो एज अ पर्सन ही वॉज ऑल्सो अ पर्सन, ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ द रोड एट द सेम टाइम. तो वो दोनों रोड पे एक ही टाइम पे तो ट्रैवल नहीं कर सकता ना. He has to make choices in them. He has to choose one of them. And to be one traveler, long I stood. और एक वो जैसे traveler है, like a traveler, he was standing there and thinking that which road is perfect for her, for his, or for him. And looked down as far as I could. And he was looking down and thinking so much and he was seeing both the road. वो दोनों roads को देख रहा था कि वो कहाँ पे जाके end हो रही हैं, कहाँ पे जाके डाइवर्ज हो रही हैं वो रोड. वो दूर तक देखता ही जा रहा था कि उसको कोई तो वे मिले, कि उसको कुछ तो हिंट, कुछ क्लू ऐसा मिले कि कौन सी रोड इज़ बेटर है उसके लिए. टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ. और वो ये देख रहा था कि कहाँ पे जाके ये रोड मुड़ रही हैं, कहाँ पे जाके ये बुशेज़ में कहाँ पे जाके लोग टर्न हो रही हैं ये रोड. सो इन सिमिलर वे आवर लाइफ इज़ ऑल्सो देयर. दिस होल पैराग्राफ सिम्बलाइजेज ऑफ आवर लाइफ. That once in our life we have come across some situations where we have to make choices. We have many alternatives and that alternative we have to choose the best among them. हम लोग की लाइफ में भी ऐसी choices आती हैं और उन choices को हम लोग में से कोई एक ही को हम लोग चूज़ कर सकते हैं. और at that point of time और उस टाइम पे हम लोग भी बहुत थिंक करते हैं, सोचते हैं कि कौन सी चॉइस हम लोग के लिए बेटर होगी, कौन सी रोड, कौन सा पाथ हम लोग के लिए लाइफ के लिए बेटर होगा जो हम लोग को सही रास्ते पे ले जाएगा. और हम लोग दोनों पे तो हम पाथ हम लोग चूज़ नहीं कर सकते. हम लोग तो वी ऑल्सो थिंक अ लॉट ऑफ देम एंड वी ऑल्सो सी फार एंड कंसल्ट एवरी वन दैट विच इज़ द बेटर पाथ फॉर अस. नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग द परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. Though as far that the passing there had warned them really about the same. Then in second paragraph of the first line that
then took the other just as well. Then the poet had took the other road. He has not chosen the first road, he has chosen the other road. उसने पहली रोड बिल्कुल चूज़ नहीं करी, उसने सेकंड रोड चूज़ करी क्योंकि वो उसे सही लग रही थी, बहुत फेयर लग रही थी, काफ़ी सही लग रही थी. एंड हैविंग पर हैव्स द बेटर क्लेम, उसको लग रहा था कि ये क्लेम सही है, ये बेटर है उसकी लाइफ के लिए, ये पाथ सही चलेगा. और उसने और ये क्यों चूज़ करी, उसका रीज़न और भी है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वे. और क्योंकि वो रोड पूरी ग्रास सी थी, पूरी उसमें येलो आई एम सेइंग इट वॉज अ ग्रीन ग्रास थी उसमें, और वो पूरी वांटेड वे. हेयर द वांटेड वे सिम्बलाइजेज दैट नो वन हैड ट्रैवल ऑन दैट रोड, कोई भी उस रोड तक ट्रैवल नहीं कर पाया था. और वो पूरी उसमें भी अभी ग्रीन ग्रासेस थी, तो इसका मतलब उसमें भी कोई ट्रैवल नहीं किया, तो उसने इसीलिए वो रोड चूज़ करी जिसमें अभी तक किसी ने ट्रैवल ही नहीं किया था. देन दो एज फार द पासिंग देयर, और वो काफ़ी दूर तक जा भी रही थी वो रोड, और वो पास भी कर रही थी, और उसमें से कोई भी गया नहीं था, तो उसे वही बेटर क्लेम लगा, सो उसने वो रोड चूज़ करी. हैड वॉन देम रियली अबाउट, लेकिन उससे बाद में वो रोड काफ़ी सिमिलर ही लग रही, दोनों रोड उसको सिमिलर लग रही थी, बट उसे सेकेंड रोड ज़्यादा बेटर लगी, तो उसने वो चूज़ करी. देन इन द सिमिलर वे आर लाइफ इज़ ऑल्सो देयर, इसी तरह हम लोग की लाइफ भी होती है, वो भी हम लोग को यही बताती है कि हम लोग को भी तो चॉइसेस बनानी होती है अपनी लाइफ, चॉइसेस सिलेक्ट करनी होती है कि कौन सी हम लोग के लिए सही होगी. और अगर हम लोग एक बार एक चॉइसेस बना लेते हैं, तो अगर फिर वी हैव टू मूव ऑन अहेड, हम लोग को उसी में चलना होता है, वही हम लोग के लिए बेटर होता है. हम लोग को उस टाइम हम लोग को वही बेटर लगता है, क्योंकि चॉइसेस ऐसी होती है जो हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते. वंस वी हैड चूजन once we had taken the choices, when we had selected our path, when we had selected our goal, we can't go back. So that's why poet has said to think and make a better choice, so that we don't have any regret, because all the paths are looking like same, but some on the another way they are different. सब पाथ एक ही जैसे लगते, लेकिन कहीं ना कहीं से वो डिफरेंट होते हैं. Then third paragraph, and both that morning equally lay in the leaves, no step had torn back. Oh, I kept the first for another way, yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. Then the third paragraph, first line, it means that एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. फिर जब मॉर्निंग हुई, उसने मॉर्निंग टाइम में देखा कि दोनों एकदम सेम रोड थी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं था. एंड इन द लीव्स नो स्टेप हैड टॉरेंट बैंक, और दोनों में ही किसी ने चला नहीं था ज़्यादा, कोई भी लीव ज़्यादा क्रश नहीं हुई थी, और सब सेम था उसमें. आई हैड केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर वे. अब लेकिन वो उसे सेकेंड रोड चूज़ कर ली थी, वो उसे बहुत आगे जा चुका था, तो अब वो वापस नहीं आ सकता था कि वो वापस आके अदर रोड ले ले, क्योंकि अब उसको आगे बढ़ चुका था, तो उसके आगे ही चलना था उसको. ही कांट कम बैक. सो उसने ये बोला कि ठीक है, मैंने दूसरी रोड अगली बार के रख दी है, जब नेक्स्ट टाइम कहीं मेरे सामने चॉइसेस आएंगी तो मैं सेकेंड वे चूज़ कर लूँगा. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक. लेकिन उसे पता था, वो सेम इस तरह थी, क्योंकि उसको लगा कि उसको डाउट था, अभी भी डाउट था कि क्या वो कभी उस रोड पे कहीं वापस आ पाएगा. इसलिए इसने ऐसा बोला कि ठीक है, मैंने अगली बार के रख दी, अगर कभी मुझे चॉइसेस मिली तो मैं दूसरा चूज़ कर लूँ. लेकिन उसे तभी भी डाउट था कि क्या वो कभी वापस आ पाएगा उस रोड में, क्या उसने जो रोड चूज़ कर ली है वो उसके लिए सही है. अभी भी उसको डाउट था, ये क्या दूसरी रोड ज़्यादा सही तो, अभी भी पोएट को ये डाउट था. तो सेम वे आवर लाइफ इज़ ऑल्सो देयर. इफ़ वी हैड मेड चॉइसेस, अगर हम लोगों ने एक बार चॉइसेस बना ली तो हम लोग कभी भी वापस नहीं आ सकते. हम लोग को उसी चॉइस के साथ चलना होता है. हम लोग को भले चाहे दोनों, क्योंकि हर रोड, हर पाथ, हर गोल, हर एम में प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, अचीवमेंट्स यही होते हैं. तो इसलिए दोनों रोड पोएट को सेम लग रही थी. इसी तरह हम लोग को भी सारी चॉइसेस, सारे अल्टरनेटिव सेम लगते हैं, क्योंकि सब में सेम सिचुएशंस हम लोग को फेस करनी पड़ती है. सो हम लोग उस समय अगर गलत सिचुएशन में चूज़ कर ले, गलत चीज़ चूज़ कर ले, तो हम लोग को बाद में यही रिग्रेट रहता है कि ठीक है, अभी नहीं कर पाए तो हम लोग अगली बार कभी चॉइसेस फिर हम लोग लाइफ में तो हम लोग दूसरी चूज़ कर लेंगे. बट क्या हम लोग कभी चूज़ कर पाते हैं? वी कांट. हम लोग कभी ये चीज़ चूज़ नहीं कर पाते हैं. जो रोड हम लोग ने एक बार चूज़ कर ली, जो पाथ, जो गोल हमने चूज़ किया, हम लोग कभी उससे वापस नहीं आ सकते. सो इसीलिए हम लोग को भी अपनी लाइफ में हमेशा सही
और राइट गोल, राइट पाथ चूज़ करना चाहिए। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई, समवेयर एजेस एंड एजेस, hence two roads diverge in wood, and I took the one less traveled by, and that has made all differences. Then in fourth paragraph poet is saying that I shall be telling this with shy. मुझे ये बताते हुए शर्म सी लग रही है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है ये बात बताते हुए कि somewhere ages and ages hence, और जब मैं फ्यूचर में हूँ, अब मैं फ्यूचर में अपने गोल चूज़ कर चुका, अब मेरा फ्यूचर आ चुका है, तो कभी ना कभी मैं अपने फ्यूचर में बोलूँगा कि शायद से बोलूँगा कि हाँ वंस अपॉन अ टाइम दैट टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, उस बोलेगा कि हाँ एक बार ऐसा हुआ था, वंस अपॉन अ टाइम एक बार ऐसा कि टू रोड्स मेरे सामने, टू चॉइसेस आई थी जो एक वुड में जाके डाइवर्ज हो जाती थी। दे वर डाइवर्जिंग, टू रोड्स आई हैड सीन एंड इन वन वी हैव टू मेक चॉइस। दो रोड मेरे सामने थी और उन दोनों में एक को चॉइसेस हमको करनी थी और दोनों येलो वुड में जाती थी जाके। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो चूज़ करी जो बहुत कम ट्रेवल्ड लोगों ने करी थी, जिन लोगों ने बहुत कम चला था, मैंने वो रोड चूज़ करी। एंड नाउ व्हाट इट बिकम, अब जो मेरा फ्यूचर है वो उस टाइम के डिसीजन को लेके ही आज मेरा ये फ्यूचर रहा है। सो सेम वे इन आवर लाइफ ऑल्सो, दैट इफ़ वी हैड मेड चॉइसेस तो वी कांट गो बैक। अगर हम लोगों ने एक बार चॉइस बनाने में कभी वापस नहीं जा सकते, और फिर फ्यूचर में हम लोग यही बोलते हैं कि एक बार फ्यूचर में हमने भी कोई रोड चूज़ करी थी, मेरे सामने भी ये गोल आया था, मेरे सामने भी ये चॉइस आई थी जो हमको चूज़ कर, और आज जो मैं बना हूँ मैं उस चॉइस की वजह से बना हूँ, चाहे वो अच्छा बना हो चाहे बुरा बना हो। हम लोग कभी फ्यूचर में याद करेंगे तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। एंड मैंने भी इस टाइम वो रोड चूज़ करी थी जिसमें सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स मुझे कम दिखी थी, बट आज अगर मेरे फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स अब आ रही हैं वो उस टाइम के डिसीज़न की वजह से हैं, या फिर जो भी अच्छाइयाँ आ रही हैं या फिर जो भी एडवांटेजेस आ रहे हैं वो भी उस टाइम के डिसीज़न की वजह से। सो इट वाज अ वेरी ग्रेट मैसेज फॉर दी स्टूडेंट्स। ये मैसेज है स्टूडेंट के लिए, हम लोग को हमेशा वाइस और सही चीज़ हम लोग को चूज़ करनी चाहिए। एंड इफ़ वी हैव टेकन अ रॉन्ग गोल, इफ़ वी हैव टेकन अ रॉन्ग चॉइस, देन वी ऑलवेज रिग्रेट, हम लोग हमेशा रिग्रेट करे रहेंगे, हम लोग हमेशा फील सॉरी करेंगे और हम लोग पास आगे कोई चॉइस नहीं होगी, एंड आवर फ्यूचर विल बी गो डाउन, हम लोग का फ्यूचर पूरा ख़राब हो सकता है। सो इट्स अ मैसेज फॉर स्टूडेंट दैट वी बिफोर चूजिंग एनीथिंग वी शुड take concerns of other, we should listen to other, then after thinking so much we have to make choices. We should not make choices randomly, and we should have a spirit, have a great anxiety to face the problem. हम लोग को प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है ताकि हम लोग का फ्यूचर बाद में ब्राइटर हो सके। So in this poem, this message is only there, this is an important message for us, that we don't have to make wrong choices so that we cannot regret, and if we had made choices we have to regret, and we should always wise while making our choices of our life. So thank you students, I hope that you like the video. Thank you.